Oh friends, please like, share and subscribe my channel. وہ دونوں بہن بھائی کل سے بھوکے تھے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا. جب وہ اٹھتے اٹھتے تھک جاتے ہیں تو وہ ایک پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں. بھائی مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے, میں اب اور نہیں اٹھ سکتی. میری بہن, پہلے ہمارے ماما پاپا ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں کوئی چنتا نہ تھی, لیکن اب تو دھیرے دھیرے ہمیں بھوجن کی کھوج سیکھنا ہوگی. اگر تم ایسے گھبرا جاؤ گی تو پھر کیسے چلے گا؟ زندگی کا یہ سفر بہت لمبا ہے. وہ اناتھ تھے. کل تک جو اپنے مما پاپا کی آنکھوں کے تارے تھے, جنہوں نے کبھی بھوک تک نہ دیکھی تھی, جو ہر سمے ہنستے اور خوش رہتے, آج وہ صبح سے اس ظالم جنگل میں بھٹکتے پھر رہے تھے اور کوئی بھی ان کا اپنا بننے کو تیار نہ تھا. اور پھر وہ اڑتے اڑتے دوسرے جنگل تک پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی دوسرے جنگل میں جانے لگتے ہیں, انہیں وہاں بیٹھا ایک الو روک لیتا ہے. ٹھہرو چھوٹے پکشیوں، میری بات سنو. اور وہ دونوں بہن بھائی اس الو کے پاس چلے جاتے ہیں. تم کون ہو اور کہاں منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو؟ ہم اناتھ ہیں. ہمارے ماتا پتا 2 دن پہلے مر گئے تھے اور ہم کل سے بھوجن کی کھوج میں بھٹکے پھر رہے ہیں, لیکن ہمیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا. لیکن تم اس جنگل میں نہیں جا سکتے. ہم کسی بھی باہر کے پکشی کو اپنے جنگل میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتے. اس جنگل میں تو بھوجن کی پہلے ہی بہت کمی ہے. بس اسی کارن میں یہاں پہرا دے رہا ہوں. اکثر تمہارے جیسے پکشی ہمارے جنگل میں گھس جاتے ہیں. انکل الو, لیکن ہم بہت بھوکے ہیں. آپ پلیز ہم پر دیا کریں اور ہمیں کچھ کھانے کو دیں. میرے پاس تمہاری فضول باتیں سننے کا سمے نہیں ہے. تم یہاں سے واپس بھاگ جاؤ, نہیں تو لگاؤں گا 2-4 چونچے. اور پھر وہ دونوں بہن بھائی دوسری دشا میں اڑ جاتے ہیں. وہ تھے تو بہت تھکے ہوئے, لیکن وہ بھوکے بھی تھے اور رات بھی ہونے والی تھی, اس لیے انہوں نے رات ہونے سے پہلے کوئی سرکشت جگہ بھی ڈھونڈنی تھی اور کھانے کو بھی کچھ ڈھونڈنا تھا. وہ تو بس یہاں سے وہاں اڑتے رہتے ہیں, لیکن یہاں تو بھوجن کی کھوج کرنا انہیں آتا ہی نہ تھا. اگر کہیں سے بھوجن نظر آتا تو بڑے پکشی انہیں بھگا دیتے اور پھر انہیں ایک بڑے سے پیڑ پر ایک گھر نظر آتا ہے. وہ دونوں بہن بھائی وہاں جاتے ہیں. وہ دستک دیتے ہیں. کون ہے باہر؟ میں سویا ہوا تھا. ہم چھوٹے پکشی ہیں, ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے. اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو دعائیں دیں گے آپ کو. اور پھر وہ چھوٹا کوا دروازہ کھول کر باہر آتا ہے. تم ابھی میری طرح چھوٹے سے ہی ہو, پھر کیسے ایسے برے حالات میں پھر رہے ہو؟ 2 دن پہلے جو جنگل میں بڑا طوفان آیا تھا, اس بڑے طوفان میں ہمارا گھر ٹوٹ کر گر گیا. میرے مما پاپا نے بہت مشکل سے ہمیں تو گھر سے باہر پھینک دیا اور انہیں سلا ملا گھر سے باہر نکلنے کا, اور وہ دونوں وہی مر گئے. کھانے کو دے دو تو بڑی کرپا ہوگی آپ کی. اس چھوٹے کوے کو ان دونوں بہن بھائی پر دیا آتی ہے. تم دونوں یہیں بیٹھو اور میں گھر سے کھانے کو کچھ لے کر آتا ہوں. اور پھر وہ چھوٹا کوا ان کے لیے کچھ کھانے کو لینے چلا جاتا ہے. وہ کوا جیسے ہی وہاں سے جاتا ہے, وہاں ایک بڑا کوا اور بڑی کوی آ جاتے ہیں. کون ہو تم چھوٹے پکشیوں, اور یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ ہم پہاڑوں والے جنگل سے آئے ہیں, بھوکے ہیں, صبح سے کچھ نہیں کھایا. اڑتے اڑتے ادھر نکل آئے اور پھر یہ گھر دیکھ کر ہم نے دستک دی. وہ چھوٹا کوا گیا ہے ہمارے لیے کچھ کھانے کو لینے, وہ بس آنے ہی والا ہوگا. بھاگو یہاں سے, آنے ہی والا ہوگا. یہ گھر ہمارا ہے اور وہ ہمارا بیٹا ہے. کتنی بار منع کیا ہے اسے کہ تم جیسے راہ چلتے پکشیوں کو منہ نہ لگایا کرے, لیکن مانتا ہی نہیں وہ. ابھی تک یہیں بیٹھے ہوئے ہو, سنا نہیں؟ بھاگ جاؤ, نہیں تو لگاؤں گی 2-4 چونچے. وہ چھوٹے پکشی تو ڈر کے مارے ترنت وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. وہ پکشی کہاں گئے ہیں؟ میں ان کے لیے بھوجن لے کر آیا تھا. انہیں بھگا دیا ہم نے. تمہیں نہیں پتا بیٹے, ایسے چھوٹے پکشی بہت چلاک ہوتے ہیں, موقع دے کر چوریاں کر کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن مما, وہ تو بہت اچھے اور معصوم پکشی تھے, وہ ایسے پکشی نہیں تھے. آپ نے تو ایسے ہی انہیں بھگا دیا, وہ تو بہت بھوکے تھے.
चलो तुम घर चलो, भूखे थे तो खा लेंगे कहीं से और मांग कर। ऐसे पक्षियों का तो काम ही यही होता है। और फिर दोनों बहन भाई थक हार कर एक पेड़ पर जाते हैं और फिर शाम हो जाती है। लेकिन अब और फिर अचानक से उनका ध्यान थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे पड़ता है। यहाँ एक बुलबुल बेहोश पड़ी हुई थी। वो दोनों बहन भाई जल्दी से उसके पास आते हैं। आंटी, क्या हुआ आपको? आप बोल क्यों नहीं रही? ये हैं तो जिंदा, शायद बेहोश हो गई हैं। मैं इनके लिए पानी लेकर आता हूँ। और फिर वो बच्चा पास में से ही थोड़ा सा पानी लाकर उस बुलबुल के मुंह में डाल देता है, जिससे वो बुलबुल होश में आ जाती है। तुम कौन हो बच्चों, और यहाँ इतनी शाम को तुम क्या कर रहे हो? लेकिन आंटी, आप कैसे बेहोश हो गई थी? बेटा, मैं ये फूल बेचती हूँ जंगल में। मैं घर वापस लौट रही थी कि मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। मैं यहाँ बैठ गई और फिर न जाने कब मैं बेहोश हो गई। बच्चों, मेरा भी इस दुनिया में और कोई नहीं है। एक बेटी है, वो भी बहुत दूर फूलों वाले जंगल में रहती है अपने बच्चों के साथ। अगर तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। वो दोनों बहन भाई बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपने हम पर दया की। लेकिन हमें गिला है हमारे अपने जंगल के पक्षियों से, जिन्होंने हमारी थोड़ी भी मदद नहीं की। बेटा, किसी की मदद करने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा अपना कोई जानने वाला ही हो, बल्कि असल नेकी तो यही है तुम ऐसे पक्षियों की भी मदद करो जिन्हें तुम नहीं जानते। और फिर वो दोनों बहन भाई उस बुलबुल के साथ उसके घर चले जाते हैं। वो बुलबुल उन्हें भोजन देती है। वो जी भरकर भोजन खाते हैं और फिर उस बुलबुल से बातें करते रहते हैं। और फिर रात हो जाती है और वो सब बुलबुल बहन, अभी तक सोई हुई हो? उठो, सुबह हो गई है। मेरी तबीयत रात से खराब थी, बस इसलिए रात देर से सोई थी। और बुलबुल बहन, ये बच्चे कौन हैं? ये अनाथ हैं। इनके माता पिता मर गए हैं। कल जब मैं रास्ते में बेहोश पड़ी थी तो इन बच्चों ने मेरी बहुत मदद की और फिर मैं इन्हें अपने साथ ले आई। आंटी बुलबुल, आज से मैं भी जाया करूँगी आपके साथ फूल बेचने। बहुत बुद्धिमान है ये बच्चे। बुलबुल, इनका अच्छे से ख्याल रखना। ये बड़े होकर जरूर हमारे जंगल के लिए कोई बड़ा काम करेंगे। क्यों नहीं बेटा, तुम भी चले जाना। और मैं भी। बुलबुल बहन, कुछ फूल पड़े हैं घर में तो दे दो। मेरी बहन आ रही है दूसरे जंगल से। मैंने अपनी बहन के लिए फूल से हार तैयार करना है। तोते भैया, ये फूल तो पड़े हैं लेकिन कल के हैं। अगर ताजे ताजे फूल चाहिए तो थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी ला देती हूँ। ये भी ठीक है, उनसे हार अच्छे से तैयार हो जाएगा। और फिर तोता वो फूल लेकर चला जाता है। तो फिर चले मेरे नए दोस्तों और मेरे बच्चों। चले आंटी, चले आंटी। और फिर वो दोनों बहन भाई बुलबुल के साथ फूल बेचने लगते हैं और वहीं अपनी जिंदगी खुशी से गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि बुलबुल जंगल में कौन सा काम करती थी? और अगर आपको ये वाली कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमें को हर समय शरारतें करने की बुरी आदत थी। वो हर समय किसी ना किसी को तंग करता और हर समय कोई ना कोई शरारत करता रहता था। उड़ते उड़ते उसे बुलबुल के घोंसले में 2 अंडे नजर आते हैं। कौवा वहाँ जाता है, वो बुलबुल का एक अंडा तोड़कर पी लेता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। कोई मेरा अंडा पी गया, कोई जालिम मेरा अंडा पी गया। थोड़ी दूर छुपा हुआ कालू कौवा बुलबुल को रोता हुआ देखकर हंस रहा था। बुलबुल, अभी तो मैंने तुम्हारा एक अंडा पिया है। अगर दोनों ही पी लेता तो फिर तुम क्या करती?
दूसरे दिन चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, आज आप क्या बना रही हैं? मैं अपनी बेटी के लिए फलों का हलवा बना रही हूँ। मम्मा, थोड़ा सा फलों का हलवा मैं अपनी दोस्त को भी दूंगी। हाँ बेटी, मिल बांट कर खाना ही अच्छा होता है, आप दे आना। चिड़िया के घर से धुआं निकल रहा है, छत से जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर की छत पर जाता है और एक सुराख में से देखता है। ये तो फलों का हलवा बना रही है, कुछ ऐसा करता हूँ जिससे चिड़िया का हलवा खराब हो जाए। कालू कौवा पेड़ के पास से मिट्टी लेता है और चिड़िया के घर की छत के सुराख में से वो मिट्टी चिड़िया के हलवे में डाल देता है। ये मिट्टी कहाँ से आई? मेरा सारा हलवा खराब हो गया है। मम्मा, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। चिड़िया की बेटी जल्दी से घर से बाहर आती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौवा भागकर पेड़ के पीछे छुप गया था। मम्मा, बाहर तो कोई भी नहीं है। शायद कोई पक्षी ऐसी बुरी शरारत करके भाग गया है। जो मुझे हलवा नहीं देगा वो फलों का हलवा नहीं बल्कि मिट्टी वाला हलवा खाएगा। कौवा ऐसे हंसता है। शरारती कौवा बहुत बुरा था। वो घने जंगल से गुजर रहा था। उड़ती हुई तितली को पंख मारकर गिरा देता है और सामने एक पेड़ में एक छेद देखकर वहाँ चला जाता है। हेलो, कोई है इस पेड़ में? यहाँ तो कोई नहीं है। अगर कोई पक्षी होता तो मैं उसे थोड़ा तंग ही कर लेता। वो अपनी चोंच पेड़ की खोखर के अंदर करके बोलता है। अंदर से एक बड़ा नाग निकलता है और कालू कौवे को खींचकर पेड़ की खोखर के अंदर ले जाता है। ऐसे कालू कौवे को उसकी शरारतों की सजा मिलती है और वो अपनी जान से जाता है।